جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے امی نہیں مان رہی. بہت ساری جگہوں پہ تو واقعی امیاں نہیں مان رہی ہوتی ہیں کیونکہ امیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, اور کہیں کہیں جو ہے نا امیاں بیچاری ایویں بدنام ہو رہی ہوتی ہے اور امی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا میں اس رشتے کے والے سے نہیں مان رہی. کیونکہ اکثر ریلیشن شپ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب لوگ کوئی ایک پارٹنر ریڈی نہ ہو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, تو پھر وہ کہتے ہیں سوری میری تو امی نہیں مان رہی, ابھی میرے پہ بڑی ذمہ داری ہیں. اصل ہم بات کر رہے تھے آپ کے سب سے تیسرے والے چھوٹے والے بیٹے کی. جی چھوٹے والا بیٹا جو ہے وہ تو کافی نیگلیکٹ ہوا کیونکہ جو بڑے والے تھے انہوں نے مجھ سے سارا پیار لیا, اور چھوٹے والا چپ رہتا تھا. اس کو کبھی کہیں گدا ڈال دیتے تھے, کبھی کہیں ڈال دیتے, نہ اس کا کمرہ تھا نہ اس کو زیادہ لفٹ کرائی جاتی تھی. بلکہ ایک دفعہ تو میں انڈیا میں اور باجی بشرا گئے, تو جب بہت دن گزرے میں نے کہا باجی چلے اب مجھے احمد یاد آنے لگا. اب تو مجھے احمد بھی یاد آنے لگی, یعنی وہ بالکل ہی نیگلیکٹڈ چائلڈ تھا نا, بالکل اس کو میں کہتی چل بھاگ یہاں سے. وہ بیچارہ ایسے ہی تھا, چپ چاپ معصوم سا, بڑے بھائیوں کو یوں یوں دیکھتا تھا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس نے بڑے والوں کی شادی سے بہت کچھ سیکھا. اس نے دیکھا اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے. اس نے کہا کہ یہ پرابلم ہوتی ہے, بھابھیوں میں یہ مسئلہ ہے, بھائیوں میں یہ مسئلہ ہے, یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس نے اتنا آبزرو کیا کہ وہ ایسا عالی شان بچہ نکلا. لیکن اس کا کوئی وہ گاتا ہے, اس کو گانے کا بہت شوق ہے, اس کو اسٹوڈیو بنا دیا, اپنا گاتا رہتا ہے. وہ اپنے ٹڑنگ ٹڑنگ گٹار میں لگا ہوا. نہ میں نے کبھی دیکھا اس کی فونوں پہ باتیں, نہ کوئی وہ جا رہا ہے, ایسے مست ملنگ سا. ایک دن میں شوٹ پہ تھی تو مجھے فون آیا, اماں یار آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا پیسے ویسے چاہیے ہوں گے, کچھ کہہ رہا ہوگا کھانا پڑا ہے. میں نے کہا کیا پیسے چاہیے کچھ کھانا؟ نہیں یار بات کرنی. میں کہا اچھا میں گھر آتی ہوں. اچھا چلے پھر گھر آ جائے. میں نے کہا کیوں خیر تو ہے؟ نہیں وہ میں نے 1 گھنٹے کے اندر آپ سے بات کرنی ہے. اللہ میاں ایسی کیا بات ہے, 1 گھنٹہ ہے اس میں صرف. میں نے کہا خیر ہے احمد کیا ہوا ہے؟ یار وہ میں ایک لڑکی سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا تو کر رہا ہوں تو کر لو, مطلب کیا مطلب تم نہیں کر سکتے بات؟ یار کیوں نہیں میں کر سکتا؟ میں نے کہا نہیں کب کر رہے تھے؟ میں کر رہا تھا. میں کب سے کر رہے تھے؟ ہو گئے ہیں 6 مہینے. میں نے کہا کیا اتنا چلاک تو 6 مہینے سے لڑکی سے باتیں کر رہا ہے؟ تو بس میں نے آپ کو بتانا تھا. میں نے کہا مجھے بتانا تھا. تو اچھا اب گھر آئے نا. میں گھر آئی. میں نے کہا ہاں بھی کیا ہے؟ بس میں نے بتانا تھا. میں نے کہا لیکن میں نے اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں. میں نے کہا تو مجھے بتایا کیوں ہے؟ کیونکہ لڑکی کو لڑکی کے گھر میں پتہ چل گیا. جب لڑکی کے گھر پتہ چل گیا تو لڑکی نے کہا, اس کی سہیلیوں نے مشورہ دیا کہ تم اس کو کہو اپنی ماں باپ کو بتائے, اگر وہ سیریس ہے بالکل تو ماں کو بتائے. تو کیونکہ اس کو وہ پسند تھی, لیکن ابھی چھوٹے تھے, اس نے کہا تھوڑا ٹائم لیتا ہوں. تو لڑکی نے کہا کہ بھائی اگر تم اپنی امی کو بتاتے ہو تو پھر تم صحیح ہو, اگر تم نہیں بتاتے. لڑکے تو یہی کہتے ہیں نا, یہی مینٹیلٹی ہوتی ہے. کیونکہ لڑکے تو کہتے ہیں نا امی نہیں مان رہی, ابا نہیں مان رہے, وہی والی بات نہیں, میری امی مائنڈ کریں گی, ابو غصہ کریں گے, ہائے ہائے یہ ہو جائے گا. کیونکہ اس نے کرنی تھی, سوچ لیا ہوا تھا. تو اس نے مجھے بتا کے وہ سائڈ بھی ہو گیا. اس کو پھر اگلے دن میں نے کہا میری بات سنو, اب تو ہو گیا, تم نے مجھے بتا دی کہ تم نے واقعی آر یو شیور؟ اس نے کہا ہاں مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے. میں کہ پھر اب ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں. میں کیا ہائے کچھ بھی نہیں, وہ باتیں کر رہی ہے. تم باتیں اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اب تم اس کی امی سے مجھے ملواؤ. اچھا چلے میں بات کرتا ہوں. اس کی امی سے پھر میں باہر ملی کسی ریسٹورینٹ میں. اس نے اپنے گھر میں اپنی امی کو بتایا. اب وہ تو بس ہو گئی نا, جیت گئی نا وہ, کیونکہ لڑکے تو یہی کہتے ہیں نا. سہیلیوں نے کہا ہوگا بول نہ بول کہ ماں کو بتائے, ماں کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. وہ ایٹ لیسٹ اس کو ہوگی کہ سیکیورٹی ہوگی کہ ہاں اس کی ماں کو پتہ ہے, سیریس ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ سچ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں سیریس ہے. تو اس کے بعد وہ اس کی امی آئی, ان سے میری بات ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بھی ایسا ڈری ہوئی, جان نکلی ہوئی, پھونک نکلی ہوئی اس کی, کہ پتہ نہیں چڑیل ڈرامے دیکھ دیکھ کے ویسے بچے میرے سے ڈر جاتی ہیں لڑکیاں کہ یہ تو ساز ہی بڑی خوفناک ہے. اس کے بعد اس نے کہی احمد نے اس کو نمبر دیا, اس نے مجھے انسٹا پہ میسج کیا. اس نے کہا آنٹی السلام علیکم آنٹی. میں نے کہا بیٹے آنٹی نہیں کہتے اماں کہتے. اس سے تو وہ اتنی خوش ہوگی کہ اماں ہی مجھے بول دیا, ڈن ہو گیا, ڈن ہو گیا. وہ تو بڑی پھر اس کو کانفیڈنس آیا. خیر بات چیت ہوئی تو ہم نے کہا بھی اپنے پیرنٹ ہم آتے ہیں تمہارے گھر وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے بات کی اور وہ لوگ بھی سنا تھا بڑی مشکل سے نہیں مانتے, لیکن لڑکی نے کہا کہ مجھے تو کرنی ہے. دیکھیں نا یہ بھی تو بات ہے نا, کیونکہ وہ لوگ ہیں ان کی جو ذات جیسے کہتے ہیں فلاں میں باہر نہیں کرتے, وہ لوگ بھی بڑے اس معاملے میں ریجیکٹ تھے کہ نہیں ہم نے باہر نہیں کرنی. لیکن بچی نے کاسٹ کیا تھی ویسے؟ وہ کیا ہوتے ہیں جو روتکی رانگڑ جس ہوتے ہیں. اور آپ لوگ؟ ہم لوگ تو نارمل سے لوگ ہیں. ویسے میرے ابا کی طرف سے تو شیخ ہیں, میرے ہسبینڈ جاٹ
गिल जाट। तो आप लोग को ये नहीं था कि हमने हमें नहीं प्रॉब्लम कोई भी, लेकिन उन लोगों को बहुत था। उनके घरों में शायद एक आधी लड़की कहीं बाहर भी आई थी, तो उनके अब्बा जरा सख्त थे। तो बस ये था कि डैडी को पता चलेगा तो डैडी तो कत्ल ही कर देंगे, डैडी मार देंगे, डैडी को मुझे यूं कर देंगे, ज़िबा हो जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मेरे साथ बातें चल रही पता फिर डैडी को कब पता चलेगा, डैडी को जल्दी बता दो। मैं तो सहेली बन गई ना फिर, आज पता चलेगा, आज मूड कैसा है उनका, आज डैडी के मूड ठीक है। अब अम्मी बेचारी उसकी जो है वो छुपी फिर रही है, अम्मियाँ तो बेचारी छुपती है ना, और डैडी जो है मम्मियों को सुनाते हैं तुम्हारी लड़की तुम्हारी लड़की। अब लड़की का हाल, अच्छा भाई साथ मिले हुए, उसके इतने क्यूट भाई है ना, वो साथ मिले हुए कि नहीं यार अहमद भाई तो बहुत अच्छा है, वो मिल रहे हैं भाई से, सब हो रहा है। डैडी भूत, डैडी नहीं मान, डैडी भूत बने हुए, डैडी नहीं मान रहे। अब डैडी को बताओ तो डैडी का क्या रिएक्शन होगा। अच्छा जी, डैडी को पता चला, डैडी ने पहले कहा मुझे पहले ही पता था तुम कि कुछ ना कुछ करके रहोगी। मैं तो फिर उसकी अम्मी करनी आप एक दफ़ा, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता का, एक दफ़ा, और ऊपर से है टीवी में है वो, हाँ ये लोग भी लग रहा होता है। नहीं क्या बात कर रही हो, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर उनकी अम्मी ने कहा एक दफ़ा मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोग उनके घर गए, तो मेरे जो हस्बैंड है वो बड़े मज़ेदार हैं, जाते ही उन्होंने उसको मारा जफा और मुंह पे एक चुम्मी ली। ये पड़च करके पप्पी की और कहा कि यार फिर गलती हो गई ना पक्की, फिर ते तुसी हुण मैं पप्पा भी कर लिया, पप्पी भी करदी, हुण मैं ते आना नहीं, ते तुसी आओ, कोई ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਰੇ रहना ਉੱਥੇ ਤੇ आके देखो साढ़े घर। वो तो यूं ही हो गया ना कि मैं क्या बोलूं। और वापसी पे कहते हैं सालन बहुत अच्छा, 2 सालन पा देना डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ में घर लेके जाना। जबरदस्त, ऐसे डालते हैं। तो वो जनाब वो तो उनको समझ नहीं आई कि वो ना कैसे करें। और मैं भी बच्ची का मुंह चूम रही हूँ, प्यार करे, जाहिर है कि मुझे तो प्यारी थी कि भाई मेरे बेटे ने पसंद की है तो मुझे तो प्यारी लगेगी। और वो है भी बहुत ही प्यारी क्यूट सी बच्ची। खैर उसके बाद 1 साल मंगनी हुई फिर। लेकिन सबसे अच्छी बात उसके पेरेंट्स की है कि उन्होंने 1 साल में बच्ची को इजाज़त दी कि वो हमसे बात करे, हमसे मिले, आए जाए। वरना ये भी होता है कि एकदम से आप जब जाते हैं पर्दा खुलता है तो कुछ चुड़ैलें ही निकल आती हैं अंदर से, दूसरी तरफ से भी, इधर से भी। मिजाज का पता चल जाता है। और क्योंकि इंसान कितने अरसे कंसील करके रख सकता है, कोई ना, क्योंकि उसको नहीं समझ, क्योंकि उनको आपस में बात करते हुए 6 महीने हुए थे, कुछ नहीं होता। और घर के अंदर जो रहना है जिसने, तो वो तो पता होना चाहिए कि जो सास है, ड्रामों की सास है, असल में कैसी है। बिल्कुल। और पता नहीं ये जो आदमी पड़च करके मुंह चूम गया, अंदर से ये भूत निकल आए, पता नहीं क्या बनेगा। ये वक्ती तौर पे अच्छे बन गए। ऐसे होता है। लेकिन वो उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है तुम जा सकती हो और ये लोग मिल सकते हैं। और आपस में उससे बहुत फ़र्क पड़ा। क्योंकि वो इतनी फिर कंफर्टेबल हो गई। साथ हम बेड पे बैठ के बातें करते थे, सारी फिर चुगलियाँ भी अहमद की भी करती थी। मुझे ये कह रहा है, मैं कहती चल मारूंगी इसको थप्पड़। क्योंकि अहमद बहुत और अजीब सा बच्चा था कि वो शादी से पहले बिल्कुल कहता था दूर हट के बात करो। और बड़ा सड़ियल था, इतना सड़ियल था, मैं कहती इतना सड़ियल है कैसे चलेगी, डरती थी मैं। ये लड़की तो बड़ी स्वीट सी थी, ये क्या बनेगा। शादी के बाद ऐसा पलटा खाया कि वलीमे के दिन घरारा उठा रहा था उसका। मैंने कहा है ये वो है। अब अम्मा यार वो उसको ये प्रॉब्लम हो गया है अम्मा उसको। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं तो बड़ी खुश हुई कि वो बच्चा बिल्कुल उसने अपने आप को बदला और ये समझा कि अब ये मेरी बीवी है और मुझे अपने आप को चेंज करना है। बाकी हम तो बड़े इजी गोइंग लोग हैं, हमारा तो मसला, हमारी नंद मुश्किल है, ज़ारा भी कोई मुश्किल नहीं है। और वो इतनी छोटी है, 25 की तो कुल है वो बच्ची, अभी 25 की हुई है, शादी को 8 महीने हुए हैं। जब मंगनी हुई थी 23 की थी, तो क्या इतना छोटा बच्चा। वो अब सारा दिन मेरा लेला है, उसका नाम है मेरा लेला। और वो मैं जहाँ जाती हूँ पीछे 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 पीछे। हमारे कपड़े हम शेयर करते हैं क्योंकि उसका मेरा साइज है, जूते शेयर करते हैं एक अच्छा, कितनी अच्छी बात है ना। मैं कहती हूँ जब सास और क्या कहते हैं, अच्छा लोग कहते हैं हाँ सास गाली लगता है, नहीं भी सास एक टर्म है। और जब सास और बहू का अच्छा रिलेशनशिप हो, जैसे आपने बात की कि वो से चोगलियाँ भी कहती है, तो मैं भी अपनी जो अम्मी जो मेरी सास थी, तो मैं अपनी सास को अम्मी को कहती थी कि अम्मी फैसल ये कर दिया कुछ, तो मेरी सास सुनती थी और मेरी सास बहुत अच्छे मशवरे देती थी। तो ये अगर ये बॉन्डिंग अच्छी हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि इससे हेविली और की बात ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आप भी तो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है, तो मुझे बताएं आप। वो तो मैं पहले मैं आपको अपने बड़े बेटे का बताऊँ, वो बाद में। मैं अपने बड़े बेटे का बताती हूँ। मेरा जो बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह बचपन से स्टूडियस, बहुत अच्छा बच्चा, क्वाइट सा बच्चा, छोटे छोटे से थे। तो मेरी नंद का मेरे घर में आना जाना, लंदन से वो आती थी, तो उनकी मतलब एक बेटा बेटी बड़ी, एक छोटी बेटी। तो ये बच्चे मिलके खेलते हैं, छोटे मेरे दोनों बेटे, वो एक एज के ना, ऊपर नीचे।
एक साल का फ़र्क, तो खेल रहे हैं। अरूसा जिस कज़न से बात करेगी, वरना तो लड़ाई, उसका पार्टी हो रही है, पूरी दोपहर हो रही है। अच्छा थोड़े से ही बड़े होंगे, अच्छा मुझे कुछ फील हुआ, वो तो मैंने अपनी नंद से कहा कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम कैसी बात कर। मैंने कहा पता नहीं क्यों, अब मैं बड़ी ऑब्जर्वेंट मदर, मैं अपने बच्चों पे मुझे पूरी नज़र मेरी होती थी कि, तो वो कहती थी किस किस्म की, उन्होंने मुझे खत झाड़ दिया, ये हो गया, ख़त्म हो गई, बात हो गई। उसके बाद अब जब फुप्पो जाएं तो रो के एयरपोर्ट पे, अल्लाह वलीद साहब इतना रो रहे हैं, अम्मी फुप्पो याद आ रही है, वलीद छोटे 10 साल 12 साल के बच्चे, अब फुप्पो याद आ रही है, अल्लाह मियाँ फुप्पो आ रही है, बस। तो वो बहुत एक्साइटमेंट और ये और वो, मगर भाई फिर तो उनका पता ही नहीं होता था ना कि बस अरूसा ये होता था। तो उसके बाद थोड़े बड़ सबको पता चलना शुरू हुआ, ये हुआ। फिर उधर से उन्होंने जो अपने घर का मोबाइल का वो, अच्छा हम उम्रे पे गए, मेरे तीनों बच्चे, और वलीद साहब रो रहे रोने आते हैं ना इश्क में, रो रहे छोटा, ऐसा भी नहीं कोई होगा 14-15 साल का होगा। बाप ने कहा क्या बात हो गई, बाप ने खैर सिम दिला दी मोबाइल के लिए, उस वक्त मोबाइल भी बड़ा रेयर हो रहा था, दिला दी और वो हो गया। अच्छा उसके बाद ना मेरी नंद ने, जब उन्होंने अपने घर के फ़ोन का बिल चेक करा तो बिल आया कोई उनका, वो तो नंबर भी आता था, उनका तो दिमाग घूम गया। उन्होंने तो फिर उसको वो और सारा कुछ उन्होंने बड़ी वो चीखी पुकार हुआ, वो हुआ कि ये क्या है और वो क्या है। वो तो वहाँ के ब्रिटिश बच्चे, वो तो कहते हैं कि हम तो भाई घर छोड़ देंगे अगर हम ये। अच्छा ये पूरा वो फिल्म का सीन चल रहा है, पूरे ख़ानदान को आहिस्ता पता कि अरूसा और वलीद का जो अफेयर है ये वो। अच्छा उसी तरह हमारे घर आना जाना, तो शादियों में, इसमें तो उसमें। अच्छा आई वाज ओके, नहीं बट आई वाज ओके, आई वाज द मामी, माय हस्बैंड वाज ब्रदर एंड सिस्टर। अच्छा सब ये समझते हैं कि मैं अपनी किसी बहन की बेटी से, या मैं चुप थी, लेकिन मैं इंटरेस्ट, मैंने उसके बाद कुछ भी कहना छोड़ दिया। लेकिन मैं वो माँ हूँ कि मेरा बेटा जिसको पसंद करता है ना, वो उसकी बीवी होती है। बस मैं नहीं जानती कि वो मेरी नंद की बेटी है या ये उसकी बेटी है। अंदर से मेरे हस्बैंड एग्री नहीं थे। अच्छा हम लोग गए यहाँ पे अब्बा नहीं मान रहे, मेरे हस्बैंड एग्री नहीं थे, मुझे अंदर से बार बार कहते थे तुम सोच लो। और मैं बार बार अपने मियाँ को अंदर से कहूँ कि देखो, और वो भाई वो उसने खैर जिद कभी नहीं की, उसने मुझे हमें ये कभी नहीं कहा कि अगर नहीं हुई तो मैं ये वो फलाना, मगर इट वाज ऑब्वियस कि वो दोनों दे वर मैडली इन लव विद ईच अदर। तो हमें सबको पता चल चुका था, पूरे ख़ानदान में पता चल चुका था। तो खुशरू अभी पढ़ने के लिए बर्मिंघम गया अभी ए लेवल्स के बाद, तो वो ऑफ कोर्स मिल रहे थे, वो था वहाँ पे, तो बच्चे जा सकते हैं, मिलते हैं, वो सब कुछ था। लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड की ग्रेजुएशन हुई थी, मैंने कहा बिल्कुल हरगिज़ नहीं। अच्छा सब पे ये इम्प्रेशन बाहर से कि आलिया जो है ना नहीं मान रही, हालांकि मैं मानी हुई थी, मुझे बाद में पता। अच्छा रोना धोना, और वो बच्चा माशाल्लाह डीन्स लिस्ट पे, अब तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो सब शुरू से लाइक बच्चा। तो उसकी अम्मी कहती थी कि ये नहीं करेंगे, और तुम उसको डांट, उधर से पढ़ रही है इधर से, वो चुप बिल्कुल। अच्छा बात उधर दूसरी साइड पे आपकी नंद मानी हुई थी कि नहीं मानी? मेरी नंद पहले तो नहीं, लेकिन जब बच्चा माशाल्लाह इतना सामने लाइक, तो जरा कितने पापड़ आप तो मेरे लिए बड़े अपनी बेटे की पसंदीदा, वो कहते हैं ना पसंदीदा औरत घर लाने में आपसे पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक आ गई। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब फिर बताएं कि मान गई फिर आपकी नंद? नहीं मेरी नंद तो मानी हुई थी, वो मानी हुई थी, फिर सिर्फ मेरे मियाँ थे, और तो सब माने हुए थे, सिर्फ मेरे मियाँ थे। मगर उस साइड पे सब ये था मेरे ससुराल में कि शायद मैं नहीं मानी हुई अंदर से। लेकिन फिर दे केम टू पाकिस्तान आफ्टर खुसरो's ग्रेजुएशन, तो मैंने अपनी बहू से बिठाया और मैंने उससे कुछ बातें की, और मैंने उसको समझाया कि देखो वॉट एवर हैपन्स बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब मेरी और तुम्हारी वो होनी चाहिए कि हमें वो टिपिकल सास बहू नहीं, यू विल बी लाइक माई इंशाल्लाह एंड आई विल शो यू। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी है, और आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। और वो अब ये होता है कि वो मेरे उससे खाना पकाना सीखा है, फिर वो लंदन में भी वो मेरे लिए फ्लावर बुके लेके खड़ी होती है। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तो मामू था मेरे लिए, मैंने कहा मैंने ये आई हैव अर्न्ड दिस, ये मोहब्बत। तो अब वो रोती है कि मैं कब आऊँ, तो आप इतना कम क्यों, और ये नहीं मामी नहीं जाएं प्लीज़ नहीं। तो फिर मैंने आई पुट माई फुट डाउन, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उसके पहले उससे मीटिंग की, मैंने हस्बैंड से कहा हम आज खुसरो की, मेरे मियाँ का ये वो फलान, मैंने कहा नहीं
हमने उनके पेरेंट्स को, हमारे घर में ठहरे हुए थे, मैंने उनको कहा कि शाम को हम लोग मैरियट में मिल रहे हैं। हम सब बैठे, मेरा बेटा भी था, मेरी बहू भी थी, और हमने एंड दे वाज सो आप तो जनाब उनकी क्वीन बन गई, ये माँ जो, और वो कहते हैं उनके लिए सुपर हीरो बनी कि जिसने करा दिया।